Hello, my dear Bachcha Pati. Good morning to all. This is Udit Pradhan Kahe, lecturer in physics. In the previous class, we have already discussed about the basic terms of physical world, physical laws, and the scope and excitements. Means the syllabus of the physics. Okay. So today we are going to discuss about the chapter unit and measurements. Okay. So these are the key points. Number one is standard measurement. First, we will discuss about the standard measurement. Then we will go to the system of units. Then practical units. Okay. So here in the chapter, or in this chapter, we focus on what is the proper definition or the basic definition of unit, and what is measurements, and what is standard measurement, and what are the system of units. Okay, when we have a question of how much in a physical quantity, okay, this is a marker and this has a length. Yes, we know length. How much is the length? Then what we are asking you to do? We are asking you to measurement. Okay, measurement. So how do you do the measurement? How do you do the measurement? So we made certain system how to make a measurement. That is first, we make a standard measurement. We make a standard measurement. We made a standard measurement. Okay. Like I declare one day that this length. It has got length. It has got a length. And with this length, we'll call 1 inch. 1 inch, yes, 1 inch. So how long it is? How long it is? So this is my standard measurement. This is my standard measurement. This is become a standard because we all agreed this much length will be called 1 inch. We all agreed. When we all agreed for a particular fixed measurement, we call it a unit. We call it a unit. Okay. So what is standard measurement? The fixed measurement is called a unit, or fixed measurement is called a unit. तो बच्चों देखो यहाँ पे फिक्स्ड मेजरमेंट को बोलते हैं यूनिट. ठीक है, तो ये यूनिट का प्रॉपर डेफिनेशन, फिक्स्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट. नाउ व्हाट इज the measurement of this? What is the measurement of this? तो marker. So how many of the standard units are accommodated by this? We say that is 1, then 2. We say that is 1, 2, 3, 4. 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch. Okay. तो बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? I will say this is 4 inch if this is 1 inch. This is 4 inch if this is 1 inch. Okay. So what is a unit? बच्चों unit क्या है? तो unit is a standard measurement. Unit is a standard measurement. Agreed by all of us. Agreed by all scientists. What are the basic words? What are the basic words? The basic words are the standard measurement. Okay, the basic word of the standard measurement. Okay. So it is also a measurement because we would say this is 1 inch. So where this much is not 1 inch. Okay. So I have no objection. I have no objection. तो यहाँ पे हम देख लीजिए ये 1 इंच, तो ये टोटल ये जो मार्कर का टोटल 4 इंच हुआ. Suppose if this is 1 inch, so I have no objection. Let us settle for that. One group of people say this is 1 inch. So you all said it is 1 inch. Yes. तो जैसे देखो ये स्केल है, ठीक है. तो I put it here. You can see this is 1, 2, 3, 4, etc. तो other group of people in France, जे यहाँ पे तो हम बोलेंगे ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच. अदर ग्रुप ऑफ पीपल इन फ्रांस का पीपल में देखेंगे ओ पीपल और वो साइंटिस्ट क्या बोले थे? This scientist go over
here sitting, they did not know about it, but they also needed it. So they say of this distance, we should keep in 1 unit, and they call it centimeter. They call it centimeter. Okay. Then they made these centimeters. Centimeters is to like 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, up to 12, 13, 15, 30 centimeter is to like. Okay. So we are at over wheel. But for French people, this is standard, and for British people, this is standards. So for unit, what is the definition? For unit, what is the definition? तो definition क्या है बच्चों? You make any standard measurement as a unit, and measurement of an object is how many times of that unit are accommodated in this particular material. तो यहाँ पे एक मटेरियल है, तो कितना मीन्स कितना टाइप का accumulate हुआ, कितना यूनिट हुआ, which we are going to measure. So I will write this thing, the standard measurement of a quantity. Standard measurement of a quantity. Okay. So it is given a name, and this is called a unit, and it is given a name, that is called a unit. Okay. So all measurements of this quantity are multiples of this unit. ठीक है, क्या है? Multiples of this unit. Okay. तो यहाँ पे देखो ये कितना मल्टीपल हुआ, ये 1 2 3 4 अप टू ये, सपोज ये 1 इंच है, तो हमको ये टोटल कितना है ना, तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये 4 इंच और 5 इंच हो गया है. ठीक है. तो यहाँ पे तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड मेजरमेंट. इफ आई डिक्लेयर दैट दिस इज आवर स्टैंडर्ड मेजरमेंट, तो ये जो 1 इंच है, ये कैप का 1 इंच है मार्कर का, तो आई पुट इट हियर ऑन द स्केल. ठीक है, एंड प्रिपेयर अ स्केल व्हिच हैज गॉट 1 2 3 4 etc. अप टू 13 सेंटीमीटर. टोटल इंच है तो कितना सेंटीमीटर जितना भी है. तो आई से देयर आर 5 यूनिट्स. सपोज ये 1 then 2 then 3 then 4 then 5. I say there are 5 units. So I will call it 5 inch, because name of my unit is inch. Okay. तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये यूनिट का स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये करेंगे. देखो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो फिक्स्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट. हमारा नेम जो है यूनिट, इसी हिसाब से हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट किए हैं. ठीक है. तो जो हम देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट कैसे है, तो यूनिट कैसे मेजरमेंट करेंगे, स्टैंडर्ड क्या है, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या है. ओके. तो ये इट द मल्टीपल्स ऑफ दिस यूनिट, क्योंकि हम इतना मल्टीपल किए थे हम. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये जो 1 इंच है उसको लेकर हम मल्टीपल किए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स ऑफ दिस यूनिट. ओके. तो फ्रेंच पीपल से दैट द नेम ऑफ आवर यूनिट इज सेंटीमीटर. यहाँ पे फ्रेंच पीपल क्या बोले, जो हमारा जो यूनिट का नेम है सेंटीमीटर. ओके. वेल, गॉट इट. सो आई पुट इट हियर एंड वी सी इट इज 1 2 3 4 अप टू जितना सेंटीमीटर तक है. सपोज 12 सेंटीमीटर, 13 15 और 30 सेंटीमीटर. और द लेंथ इज सपोज 1 2 3 जितना भी है, 5 और 4 और 6. ठीक है. सो वी अंडरस्टैंड a phenomenon. Length is the physical quantity. It is an attribute of this material, but it may be 5, it may be 10, it may be 12. This depends upon what type of units we are going to use. So what is the standard measurement? What is the standard measurements of a quantity? So what is the standard measurements where we are going to use? If our standard measurements of this, suppose if this is the marker of our standard measurement this of this, तो ये कितना हुआ
1 2 3 4 5, सपोज 5, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऐसे एक और एक लेकर हम करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। e power standard of this is 10. So what is changing, what does not change, what is changing, what does not change. Yes, it's very important बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो यूनिट है, फिजिकल यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The physical quantity related to this does not change, the length does not change. What is changing? The measurements in different units in changing because we are changing the units. So unit is important, very important. कैसे देखो, हम एक ऐसे फेनोमेनन को हम देखेंगे, कैसे देखेंगे फेनोमेनन। मैं बोला बच्चों मेरे लिए शुगर 15 सेंटीमीटर का ले आओ, क्या ले आओ, 15 सेंटीमीटर का शुगर ले आओ। कैसे रे ये पॉसिबल, ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। ये सर बोले क्या, मेरे लिए शुगर 15 सेंटीमीटर, या शुगर को कैसे हम डिस्टेंस के मेजरमेंट करेंगे, शुगर 15 सेंटीमीटर, अरे वाह 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर कैसे, हम ये शुगर को देखो और सेंटीमीटर को, शुगर क्या है, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, केजी ग्राम लेकर मेजरमेंट। साथ तो बोले क्या है 15 सेंटीमीटर, तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, तो इनवैलिड करना चाहिए, ये इनवैलिड है, ये क्या है, वैलिड है। तो जब भी हम ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे सर, तो लास्ट में एक फाइंड आउट आएगा फिजिकल क्वांटिटी का आंसर, तो उसमें लास्ट में हम देखेंगे सपोज मास क्या है तो कितना केजी कितना ग्राम, सपोज फोर्स कितना न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर, तो हमको जो भी फाइंड आउट आएगा तो न्यूमेरिकल्स में लास्ट में हम सीओ लिखेंगे जी यूनिट। यूनिट नहीं लिखेंगे बच्चों फिजिक्स में मार्क भी कट जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनीवे द यूनिट्स, द मेजरमेंट्स, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट we will see the unit, then we come to this measurement, okay. तो how is the changing, what different units, तो actually ये nomenclature है यूनिट का, nomenclature, the every physical quantities which we have mentioned all the 9, that is 7 plus 2 physical quantity है इधर 9 का, ठीक है, 7 plus 2 9 physical quantity, the 7 are the fundamental quantities, fundamental units, and 2 are the supplementary, and 2 are the supplementary which all are mentioned, that is 9 physical quantities, okay. तो हम ये मार्कर, ये स्केल के बारे में थोड़ा ऐसे हम डिस्क्राइब किया, ये 1 इंच है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये नीचे 1 इंच लिखा है, ऊपर में सेंटीमीटर है, क्यों लिखा है, तो ये पीपल साइंटिस्ट वगैरह बोले थे, ठीक है। सपोज हम घर के बात करेंगे, ठीक है, which we can generally at home किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, और we took a quantity which we use generally at home and say, okay, we'll call it 1 kilogram, and every day took a sample of it, and then many samples with the help of a scale. So with the help of a scale we can measure, everybody measure, that is 1 kg or 2 kg etc. Everybody do that sample. Now it has become a standard measurement. Now it has become a standard measurement. तो ठीक है, तो इससे बच्चों हमको देखना चाहिए कि वहां पे क्या है स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में जस्ट हमको थोड़ा कांसेप्ट को जानना चाहिए, माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, यूनिट के बारे में बहुत सारा साइंटिस्ट, ठीक है, फ्रेंच पीपल, ब्रिटिश पीपल, ठीक है, बहुत सारा साइंटिस्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बोले, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को जैसे एक n और n and u, physical quantity is represented by the help of two parameters, one is n, so what are the numbers contained in the body, what are the amount contained in the body, and u is the unit that expressed the physical quantity, okay, that express the physical quantity. तो बच्चों यहाँ पे हमको फिजिकल क्वांटिटी जानना चाहिए, तो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड थर्ड लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो साइंटिस्ट बोले, ठीक है, हम देखेंगे ब्रिटिश पीपल के बारे में, तो ठीक है, द ब्रिटिशर्स से वी विल मेजर द लेंथ सी से दिस मच, सब कुछ, ठीक है, जो मार्कर का
जो केम विथ। तो दिस विल कॉल 1 इंच एंड दिस इज गुड, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सपोज मार्क करिएगा, ठीक है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज जस्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। और ये जो है स्केल के दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। विल कॉल और दे से दैट इज 1 फुट, that is 1 foot from this point to this point. So they say we will measure the length in foot. वो बोले क्या, हम लेंथ को मेजरमेंट करेंगे फुट की तरफ से, then this call it 1 foot. Okay, means mass, we say mass को देखो वो लोग क्या बोले ब्रिटिश पीपल, जो मास को और लेंथ एंड क्या है टाइम, दैट इज टाइम। तो मास को ये पाउंड में वो मेजरमेंट, ठीक है, और ये लेंथ को कैसे फुट में, ठीक है, और ये टाइम क्या है सेकंड में। तो यहां पे क्या वो लोग इन्वेंट किए, जो वन इज द सिस्टम, दैट सिस्टम इज FPS, फुट पाउंड सेकंड, नंबर 1, दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो हम अभी देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दैट वन इज FPS, फुट पाउंड एंड सेकंड, ब्रिटिश, ठीक है। बट देयर वर फ्यू लेंथ्स लाइक गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस फुट, यस ऑफ कोर्स, सो दे मेड ए लार्जर यूनिट्स, गिव द रेफरेंस नेम both related with this, they say 3 feet together we will call it 1 yard. क्या बोले वो लोग, 3 feet together we will call it 1 yard, 1 yard, ठीक है, वो लोग बोले 1 yard, ठीक है। और क्या बोलते हैं 1716 yards together we'll call it 1 mile, 1760 yards we'll call 1 mile, ठीक है, we'll call 1 mile वो लोग बोले, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट करेंगे, we measure दिल्ली टू बॉम्बे in terms of miles, ठीक है, because it is a very large unit. तो if you want to measure small things then they divided by 1 feet into जितना पार्ट है 12 पार्ट है तो 1 feet into 12 parts, each part is called the inch, ठीक है। So these units which were made on this basis of the standard unit, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोले जितना पार्ट है उसको फीट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट वो नाम दिए क्या, नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स, क्या है, निकाल दो प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट में क्या बोले, ये इंच, माइल, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट, बट दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स बिकॉज़ we can measure them for a large distance, for a large point. Mile is practical, so mile, inch, there are the names of unit but practical units, okay. The standard units for the scientist, 1 feet, 1 foot is standard scientist का, ठीक है। तो इसे हम स्टैंडर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो स्टैंडर्ड देखिए फीट, 1 feet, 1 feet और 1 foot, तो ये साइंटिस्ट का स्टैंडर्ड नेम है। तो ये लोग देखो तो कैसे आया है, ये यूनिट कैसे आया है। तो देखो हम जाएंगे तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, क्या है, ये ब्रिटिश लोग बोले, तो एफपीएस को क्या बोले, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। देन हम देखेंगे नंबर 2, देखें क्या नंबर 2, जब फ्रेंच पीपल के बारे में हम देखेंगे, फ्रेंच, ठीक है। देन द फ्रेंच पीपल मैन और फ्रेंचमैन फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड दे यूज्ड मीटर, they used centimeter initially when the distance are small. They started a system, they used at unit centimeter, क्या बोले सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, लेंथ को, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे क्या सेंटीमीटर, वो लोग बोले कौन, फ्रेंच, ठीक है। they started the system or they used at centimeter and for the mass they used gram, ठीक है, ग्राम, इसके लिए मास, ठीक है। और एक कॉमनली रखिए सेकंड, ये तो टाइम का है, ये सब जगह है पावर,
ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे देखें ये लोग डेवलप किए डिराइव क्वांटिटी लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया सेंटीमीटर सी, ये क्या है सी जी एस, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो दिस इज फ्रेंच सिस्टम होता है। क्या है? फ्रेंच सिस्टम बच्चों याद रखो। तो क्या है? एपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, ब्रिटिश सिस्टम। नंबर 2 क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम। क्या होता है? फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो वो लोग इन्वेंट किए। देन ऐसे एरिया, ये एरिया को हम मेजरमेंट करेंगे द लेंथ इनटू अनदर लेंथ, क्या बोले एल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे फोर्स, ठीक है बच्चों, फोर्स पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है। तो फोर्स क्या है? F इक्वल टू m इनटू a, फादर इक्वल टू मदर। न्यूटन बाबा की बोले, न्यूटन बाबा क्या बोले जब फादर इक्वल टू मदर, फादर इक्वल टू मदर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कैसे करेंगे? मास तो क्या है? kg है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन का तो यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इससे बहुत सारा फोर्स दिए। तो एरिया, फोर्स, देन वर्क को डिराइव किए, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलकर, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारा ये डिराइव क्वांटिटी डिराइव की, ठीक है। तो ये कौन किए? ये फ्रेंच में, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट में बहुत सारा पीपुल और बहुत सारा लोग बहुत कंफ्यूज हो गए जी क्या है यहाँ पे, ये इंच है सेंटीमीटर है, वो लोग बोल रहे हैं इसे इंच करेंगे हम सेंटीमीटर करेंगे, ये बोलेंगे हम इंच करेंगे फीट यार्ड, ये सब क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक, बिकॉज व्हिच आर नॉट लुकिंग टू ईच अदर। पीपल क्या बोले हमको कंफ्यूज बोल रहे हैं, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड का साइंटिस्ट वगैरह एक जगह में बैठकर, ठीक, ऑल द साइंटिस्ट आर टुगेदर in a single place and they will decided जे ऐसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाऊंगा और बनाएंगे जे सिस्टम ऑफ यूनिट सब वर्ल्ड का रिप्रेजेंट करेगी। वर्ल्ड का जितना चीज है मींस इंटरनेशनल बॉडी के सिस्टम के लिए, ये इंटरनेशनल में एक बॉडी है तो इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से एज्यूम करेंगे जे ये यूनिट ही यूज होगा, ठीक है। तो कैसे यूनिट यूज होगा? तो हम देखेंगे जे ये बोले क्या, जो फ्रेंच सिस्टम बोले, देन ये ब्रिटिश सिस्टम बोले एपीएस, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो ब्रिटिशर्स बोले जो कि दे आर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, ये एरिया फोर्स ये सब। तो इट इज फॉर वेरी कंफ्यूज्ड वेरी मच और वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर all the vast of language of our one language, then only we can understand each other's measurement, otherwise neither we can talk business or nor we can go from one place to another place, because we does not understand the standard of measurements. Here and there pose to many practical problems, you can assume of that, so they are necessary to all, बहुत सारा necessary हुआ। तो कैसे हम एग्री करेंगे? ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो एक साथ बैठकर साइंटिस्ट वगैरह इन्वेंट किए, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रेंच सिस्टम सीजीएस, ये क्या है? ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सब करके साइंटिस्ट वगैरह एक जगह में बैठकर डिसाइड किए क्या करेंगे हम, एक जैसे भी सिस्टम बना हुआ जहाँ पे सब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना सब लोग आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। Means so they made their unit of system, they made the unit of system, and there was a sitting of that body, international body, and that system was known as international system. क्या है? नंबर 3 इंटरनेशनल सिस्टम, उसको बोलते हैं एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, we call it SI system, we call it SI system,
ओके, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मैट्रिक सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सो द रेफरेंस टू आवर advance in technology and science, we fix the different units for the length. You have a unit, that unit is MKS, क्या है, मैट्रिक सिस्टम। यहाँ पे यूनिट आ गया, ये मीटर, ये क्या है, किलोग्राम, ये क्या है, सेकंड। उसको एक फिक्स कर दिए साइंटिस्ट वगैरह, जो एमकेएस सिस्टम ही हम यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट। सो दिस वर चेंज this time by this development we developed that all the fundamental quantities are 9 fundamental quantity system. So the group of 9 quantities are represented by the MKS system, okay, but so that was with the system, that was the SI system. The SI system is a model system. यहाँ पे बच्चों ये लोग साइंटिस्ट वगैरह डिजाइन किए ये SI सिस्टम को हम यूज करेंगे। और अभी हम ये हमारा जो कंट्री और नाउ आवर कंट्री मेनी कंट्री मोस्ट ऑफ द आवर कंट्री वेयर यूज द एसआई सिस्टम, यूज द एसआई सिस्टम बिकॉज इट इज ए मॉडर्न सिस्टम। ऑल इफ यू अंडरस्टैंड, सब लोग समझ पाएंगे कि हाँ आराम से ये यूज करेंगे, तो सब लोग यूज करेंगे। तो इसका बहुत सारा एडवांटेज भी है, तो एडवांटेज इतना हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम सिंपल बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट एसआई सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है। तो देखो वन इज एफपीएस, अनदर इज नंबर, ये तो नंबर थर्ड है, ठीक है, एसआई सिस्टम। वन एफपीएस, नंबर 2 सीजीएस, ठीक है, और नंबर 3 एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों देखो ये तो जस्ट हमारा माइंड में रखना है, तो बहुत सारा यूनिट है ना, एमकेएस, सीजीएस, तो एमकेएस बहुत सारा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मास को देखो हम देखेंगे, उसको मास को क्या करेंगे, केजी, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएस में क्या करेंगे, ग्राम, then length meter centimeter, time second, then ये भी second। तो ये mass, length, time बहुत यूज हुआ इन हमारा मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये then स्पीड को हमको पता है, ये मीटर पर सेकंड, then ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, हम आगे देखेंगे उसका यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। सबको तो ये मालूम भी है कि यो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है, ठीक है। तो ये हमने देखेंगे, हम देखेंगे जो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या, प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स। हमको तो सबको मालूम है ना, कन्वर्सेशन 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, देन 1 mm 10⁻³ m, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर and 10⁻4 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर दैट इज 10⁻9 मीटर। ये तो छोड़ो, ये तो सिंपल सब यूनिट्स ऑफ द मीटर का सब यूनिट। हम प्रैक्टिकल यूनिट में देखेंगे, ये वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, A.U, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है बच्चों, ये एक यूनिट है जिसको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज। तो बहुत सारा हेवनली बॉडी का डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो उसका वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना मीटर है, उसका वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर, 1.496 into 10⁻11 मीटर। देखो बच्चों थोड़ा नोट डाउन करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू है। मैं तो नोट प्रोवाइड करूंगा, फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करो, ठीक है। देन नंबर 2 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बच्चों देखो याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। कितना है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम इन 1 ईयर तो 365 डेज, 24 आवर, देन 3600 सेकंड, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा 9.46 into 10⁻50 मीटर,
46 into 10 to the power 15 meter. So 1 liter equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter and equal to 9.46 equal to 10 to the power 12 kilometer. 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर ये भी वैल्यू ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ठीक है। तो इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड ये लाइट क्या है तो मींस द लाइट द डिस्टेंस बाय ट्रैवल बाय लाइट इन वैल्यू इन 1 यूनिट ठीक है। और नंबर 3 है पार्सेक। नंबर 3 है पार्सेक। ये क्या बोलते हैं पैरालिटिक सेकंड। पैरालिटिक सेकंड ये भी एक यूनिट ठीक है। ये यूनिट क्या है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc at the center of sun ठीक है at the center of sun। तो ये 1 parsec इक्वल टू उसका वैल्यू क्या है ये 3.26 लाइट ईयर क्या है 3.26 लाइट। ये सब वैल्यू सब साइंटिस्ट को हमको याद रखना है रट्टा मार के याद रखना है वहां। तो 3.26 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है 9.46 into 10 to the power 50 मीटर into 10 to the power 50 मीटर। 1 लाइट ईयर का वैल्यू है 10 to the power 9.46 into 10 to the power 50 मीटर। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। मीन 1 parsec इक्वल टू कितना है 3.008 into 10 to the power 16 मीटर। तो देखो ये बहुत याद रखो सब सिंपल फार्मूला याद रखो न्यूमेरिकल्स करने के बाद बहुत आराम से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत यूज होगा ठीक है। और एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम क्या है हम लेंथ मेजरमेंट करते किसका वेवलेंथ का यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10 to the power 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। पता है तो 10 to the power minus 10 मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ठीक है। देन और एक है 1 माइक्रोन तो 10,000 एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम ये भी वैल्यू ठीक है। बहुत सारा वैल्यू है। देन 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब वैल्यू हमको याद रखना है। देन और एक है 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power minus 50 मीटर 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power minus 50 मीटर ठीक है। तो ये सब याद रखो बच्चों आराम से हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ये सब याद रखना है माइंड में ठीक है। एंड प्लीज टेक ए स्नैपशॉट ओके टेक ए स्नैपशॉट हम ये डिस्कशन करेंगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है। हम डिस्कशन करेंगे जो भी डाउट है आराम से हम डिस्कशन करेंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे जो भी डाउट है उसका मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ठीक है। हम नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके बारे में क्या डाउट है आराम से ग्रुप में डिस्कशन करेंगे और पर्सनली मैसेज करेंगे मैसेज करो मुझे क्या डाउट है ठीक है आफ्टर क्लास ओके। तो टुडे क्लास ओवर अप टू दिस यूनिट मेजरमेंट दैट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स। स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमको पता है जे एक्चुअली जो पीपल बोले फ्रांस पीपल ब्रिटिश पीपल कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट को ये क्या किए डिवाइड किए ठीक है डिस्कवर किए। देन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या है देन प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या था प्रैक्टिकल यूनिट्स ठीक है। हमको ये सब याद रखना है बच्चों कुछ नहीं याद रखना है माइंड में न्यूमेरिकल सब करना है ठीक है बच्चों। तो ये हम चलो हम डिस्कशन करेंगे नोट कॉपी में सब नोट डाउन किए तो हम आप लोग सब नोट डाउन किए तो ये हम देखेंगे। फिर यूनिट मेजर के बाद में हम फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम देखेंगे ठीक है। तो बच्चों स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड stay home stay safe I hope all are understood the today class love you all। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभी तो डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ओके थैंक यू।